Now, the next exercise I have started, textbook exercise 10.2. Now, choose the correct option and justify it. It means MCQ है, very simple. But I have not written the answers here, MCQ में. हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे को कितना परफेक्ट नॉलेज है, उसने कितना परफेक्टली नीचे से ऊपर तक पढ़ा है, फ्रॉम 8th 9th. अब यहाँ जब आप टेंजेंट टू अ सर्किल या सर्किल को आप करते हैं तो इंस्टेड आपका यू हैव टू कीप इन मेमोरी द थ्योरम्स. अगेन आई एम सेइंग देन द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल्स आइदर द सिमिलरिटी एंड द कॉन्करेंसीज. यहाँ पे कॉन्करेंसीज का वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज गोइंग टू बी आपका नाउ जस्ट शो, ये दिखाता है आपका नाउ. एंड द थर्ड वन इज कि लाइन्स एंड एंगल्स. लेकिन इसके साथ द वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाउ द इंफॉर्मेशन इज कि because in every figure now the triangle is आपका there, but the triangle is your right angle triangle. So in right angle triangle, what the possibilities basically now the about the perpendicular, the length which is known as length, the base and the hypotenuse. means आपको सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्या करनी है, उनके प्रॉपर रेशियो प्रोपोर्शन होना चाहिए. मीन्स 3 4 5 का कॉम्बिनेशन, 6 8 10 कॉम्बिनेशन, 20 16 12 का कॉम्बिनेशन आपका नाम. मीन्स बिकॉज क्यों, वेन एवर यू आर आपका जस्ट स्टडिंग अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल, सो द स्क्वायर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड विच इज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेस्ट. रेस्ट मीन्स बेस एंड परपेंडिकुलर. So 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज आपका नाउ 9 प्लस 16 is 25 and 25 has a square root 5. It means that is a perfect combination for the right angle triangle. If you are using the Pythagoras theorem, that is your 3 4 5. In every cases you can आपका just swipe 3 and 4, but still in both the cases now the hypotenuse will be same, that is your 5. So now see. So now the solution is, first you have to draw the figure every time from a point Q. देखिएगा from a point Q से. अभी कोई जरूरी नहीं है आपको, अगर बहुत ज्यादा आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है तो कोई नहीं कि आपका इफ यू आर ड्रॉइंग द टेंजेंट आपका दैट शुड बी द हॉरिजॉन्टल ऑफ नाउ द अर्थ. नहीं नेवर. You can also make this tangent आपका another oblique, the slant you can make. Now see. This. कोई जरूरी नहीं कि टेंजेंट आपने ऐसे बनाया, मेरा कहने का मतलब है. तो सर्किल देखेगा. Now this is O, is the center. अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं. I said आपका ना देखो, from a point Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter. So now one point is Q here. ये देखिए. So from this, ये देखिए मैंने सीधा नहीं बनाया, अभी मैंने तिरछा ले लिया, but this is the tangent. Why this is a tangent? Because this PQ is a tangent. It touched the circle. It touched the circle at P, and P is what? That is a point of contact. सीधी लाइन में. Then from this, now this is the center, so you will drop the perpendicular here. Now for this is. So the basic information after making a figure, it is incompleted now. So now in a circle. Now C O R, देखिए आपका ना R इधर. Now QP is a tangent and P is a point of contact. Point of contact. आप आगे भी खींच सकते, QR भी कर सकते थे. Now there is no problem at all. तो now तो from a point Q, is 2 points say the length of the tangent to a circle is 24. So now this complete length is apana 24 centimeter till here. This length is 24 centimeter.
and the distance of Q from the center. Q की जो सेंटर से डिस्टेंस है देखिए this. तो now this complete distance is equal to now is 25 centimeter. And he is saying that the radius of a circle कितना होगा. I have not given the options here. बात को लिखेंगे हम. पकी पकाई रोटी खाना कभी मत सीखिए, हमेशा याद रखिएगा. आटा निकालिए, पानी मिलाइए, प्रॉपर रेशियो प्रोपोर्शन बनाइए, डो बनाइए, रोटी बनाना सीखिए. मिस एवरीथिंग हार्ड एफर्ट्स करना सीखो. देखो अब ये है. अब आदमी ने कहा बाप रे ये क्या है, ऐसे फिगर क्या बना दिया. क्योंकि एक्चुअल में आपको आदत पड़ी हुई है, आप लोगों को टीचर्स ने आदत, फिर हम कहते बच्चे को दिमाग में हमने डायरेक्ट ऐसा करना चाहिए. क्यों पी फिगर वही है. दिस इज योर 24 सेंटीमीटर है. ये देखिए दिस लाइन इज अ टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट which is parallel to this line and parallel to the horizontal. This O is the center. This was your 25 centimeter. मैंने ऐसे बना दिया. काम दोनों ही करेंगे, लेकिन ये मत सोचिए, क्योंकि दिमाग तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा आपका ना. अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो यहाँ तो आप ले आओगे 90% 100%. आगे इंजीनियरिंग फ्लॉप, नीट फ्लॉप, जो आज की दशा है 2008 के बाद की. सुना इन सर्किल आपका देखो क्यू पी इज ए टेंजेंट एंड पी इज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. आपका नाम देखो दिस ये हो गया. सुना ये दिस इज गिवन एंड देखिए ओपी इज अ रेडियस आर जिसको आपको फाइंड आउट करना है. ना देखो दिस बट ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन क्यूपी या पी क्यू लिखिएगा का पी क्यू. इसमें आपका नाम थ्योरम नंबर 1 आप बिल्कुल लिख देंगे. तो थ्योरम नंबर 1 क्या है सर? A tangent at any point in the पूरा बोलिएगा the tangent at any point. ये देखिए इसीलिए मैंने ऐसे बनाया है. The tangent at any point then of a circle या of a circle is perpendicular. मैंने पूरा परपेंडिकुलर नहीं लिखा, परपेंडिकुलर का साइन बना दिया to the radius through a point of contact, through a point of contact. ये देखिए तो therefore एंगल OPQ is equal to 90 डिग्री. ये देखिए अभी 90 हो गया. अब इसकी प्रॉब्लम यही सॉल्व. अब सर्किल को अगर आप थोड़ी देर के लिए उखाड़ करके फेंक दीजिएगा. सुनो दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज योर 24 सेंटीमीटर, this is your 25 centimeter and then you have to find out this. ये देखिए no need of that figure. अब आप 8th में आ गए. 8th का मतलब आपका राइट एंगल ट्राइंगल. so you have to use the Pythagoras theorem because this OP is working as a perpendicular and now this PQ which is a tangent, that is the base. This is the base, this is length or the perpendicular, this is the longest side which is known as your hypotenuse. So now in right angle triangle OPQ, either you see this figure or this else this. जो इनकम्प्लीट है जहाँ पे वो आप बिल्कुल मार्क करेंगे. ये देखिए नहीं तो आप मेरा जैसा टीचर होगा, अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो मैं आपका 1/4 मार्क्स काट दूंगा. कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को ऊपर भेजने की कि पास करके जो है कोई तोप नहीं चलानी है. तोप तब चलानी है जब आपका बिल्कुल एजुकेशन का पैटर्न जो सिस्टम को बिल्कुल आप करेक्ट चल रहे हैं. आपका इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ now using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to now base square or plus perpendicular square. Hypotenuse is what? 25 ka square. Is what base is what? That is 24 ka square. And plus P, that is R, radius. So this is 625
इज इक्वल 576 और प्लस आर स्क्वायर। और एक चीज और बोल दूं बार बार, ये मैंने कि देखिए 1 से लेके 30 तक मल्टीपल टेबल याद करिए, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स को इट शुड बी रिमेंबर एंड 1 to 30 क्यूब्स को आप याद करिए। एंड व्हेन दीज ऑल थ्री यू हैव परफेक्टली लर्न, आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नाउ देखो दिस, तो देयरफॉर r square is equal to, now it's coming on the left hand side, so formally it was a positive, after transposing on the left hand side from this right, the sign will be changed into the alternate and that alternate sign is your negative. So now the 625 and minus 576 r square is कितना होगा सर माइनस करके, this 49, and when you are removing the square from here so it will come inside the square root, ये देखिए प्लस माइनस होगा, then r is equal to 7 centimeter. This is the radius of a circle. ये आपका निकल गया। इसका मतलब जस्टिफाइड करने के लिए उसने बोला जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन में आपका मीन्स विच वन इज द करेक्ट, विच ऑप्शन। इसमें आप देखिएगा जो ऑप्शन था, आप अपनी बुक में अगर देख रहे हैं ना, द ऑप्शन वॉज व्हाट, कितना था 7 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद इट वॉज 12 सेंटीमीटर, देन द थर्ड वन वॉज 15 सेंटीमीटर, देन द फोर्थ वन वॉज 24.5 सेंटीमीटर. So now this is, so now you will write now correct option is A. तो अब आपका MCQ आपका A, जो आपका this is the second. तो आपको ये वाले में आपका ना जो फर्स्ट अगर आपने A लिखा हुआ है, अगर if you have written B, if you have written C or D, no problem. This is the correct option. Please do it.